استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے فرش سے عرش پہ بٹھا دیا۔ بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں استغفار پڑھنے سے، اور ایک ایسا ہی بڑا معجزہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گی، اور آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو فل واچ کریے گا تاکہ آپ لوگ کو موٹیویشن مل سکے اور آپ لوگ بھی آج سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات پوری کر دیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آپ کی جان کی مال کی، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد جوڑے ہیں ان کو اولاد سے نواز، اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں اللہ پاک ان کے اچھے جگہ سے رشتے آ جائیں۔ جن بہنوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، جو پریشان ہیں اپنے رشتوں کے حوالے سے، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں، سکون سے بھر دیں۔ جو پریشان حال لوگ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں اللہ پاک، سب کی حاجاتیں پوری کر دیں، سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑے سے کلپ شیئر کر رہے تھے پہلے، کچھ دن ہو چکے ہیں، تو میں اپنے گھر گئی تھی میلاد میں، تو وہاں پر جو ہے میں نے وہاں کی جو ہے کلپ شیئر کر رہے تھے، لیکن آپ کو میں نے میلاد نہیں سنوایا تھا، تو آپ لوگ سب پوچھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایسے ریکارڈ کرا ہے، آپ لوگ کو میں سناؤں گی، آپ لوگ سنیے گا۔ جو نعت خوانی سننے میں جو مزہ آتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو کیفیت طاری ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی کرواتے ہوں گے، بہت لوگ کرواتے ہیں، بہت لوگ نہیں بھی کرواتے، لیکن جب آپ لوگ سنیں گے نا تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، کیونکہ ایسی محفلوں میں ہمیں حضور پاک خود بلاتے ہیں، اور جب ہم اس محفل میں جاتے ہیں تو اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے عام محفل نہیں ہوتی، چاہے نعت خوانی کی ہو، چاہے قرآن خوانی کی ہو، تو کوئی درس وغیرہ تو آپ لوگ مت چھوڑا کریں، ضرور جایا کریں، کیونکہ یہ ہمارا بلاوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے، تو اگر ایسی محفل ہو نا تو ساری چیزوں کو بھول جایا کریں اور ضرور شرکت کیا کریں، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی محفل نہیں ہوتی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا وہ اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو خیر میں آپ کو سناؤں گی۔ وہ
वो रोज सजदों पे सजदे किए जा, नमाज़ें उसी की पे लाखों सलाम। हम गरीबों को सलाम, को सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है, तो वहाँ तो एक कैफ़ियत सी तारी हो जाती है, एक समा सा बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और इस्तिग़फ़ार का मौइज़ा जो शेयर मैं आप लोगों से करने चाह रही हूँ वो बहुत बड़ा मौइज़ा है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों ने बहुत कुछ हासिल करा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के साथ मौइज़े नहीं हुए या उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। हम जैसे कुछ दिन पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, तो हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा। अगर जो लोग कंटिन्यू और सालों से पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को आप खोल के देखें, उनसे ख़ुद पूछें, उनके बारे में मालूम करें, तो पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बदल गई हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने से। ऐसे ही मेरे करीब का एक बहुत बड़ा मौइज़ा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। पहले तो उनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जब से महंगाई हुई और उनके कारोबार में लॉस होने लगा, तो उनका कारोबार बहुत ज़्यादा जो है वो ख़सारे में जा रहा था। तो उनके घर के हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। लेकिन जब से उनके घर में इस्तिग़फ़ार का विर्द होने लगा ना, और लातादाद इस्तिग़फ़ार पढ़ा जा रहा था, और काफ़ी टाइम उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ने में, मतलब उनको अल्लाह ताला पे इतना यकीन था कि उन सब जो है उनके घर वालों ने ये सोच लिया था कि शायद हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ मतलब ये एक सज़ा के तौर पे शायद हमारे हालात जो है ख़राब हुए हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा ना, जैसे लोग कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं और कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर हमारे जो है हम पे आजमाइश है, तो हम अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये सोचा कि हम पे जो है अल्लाह की आजमाइश है और हमें इससे निकलना है। तो फिर उन्होंने जो है, उनकी पूरी फैमिली जो है नमाज़ भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इस्तिग़फ़ार का विर्द करा और दुरूद इब्राहिमी बहुत पढ़ा। पढ़ते उनके हालातों में इतनी जो है बेहतरी आने लगी। यकीन करें कि उन्होंने इतना अपना बड़ा घर ले लिया, मतलब वो उनका कारोबार जो लाखों में था ना, वो करोड़ों में चला गया। और उनका ये बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी का, देखिए उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, उन लोगों की लाइफ चेंज हो गई। और मतलब ये सारी चीज़ें जो है फ़ौरन नहीं होती। जैसे हम सोचें कि हम आज से इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो हम तो भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। नहीं, हमें जो है अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, और हमें इस्तिग़फ़ार हो, दुरूद इब्राहिम हो, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी, फिर इन सारी चीज़ों की पाबंदी हमें हम मतलब करनी है, और हमेशा बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि हमें चाहे हमारे हालात अच्छे हो जाएं या हमारे हालात बुरे हों, किसी भी हालात में हमने नहीं छोड़ना। क्योंकि एक तो हम मुसलमान हैं, हमें जो है सुकून मिलता है अल्लाह की इबादत में। दूसरा ये कि हमारे जब हालात ख़राब हो ना, तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह के सिवा कौन मदद करने वाला है। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने हालात बदल लिए, और ये बहुत करीबी वाक़या है। कोई मैं आप लोगों को किसी की स्टोरी सुनकर नहीं बता रही, जो मैंने ख़ुद देखा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप यकीन करें कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने सब ने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लाखों में करोड़ों में खेलना चाहते हैं, अगर आप रिस्क की रेल पे हो जाए, अल्लाह ताला आपको रिस्क जो है वहाँ से अता करेंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों की ज़िंदगी ऐसे ही मौज़ू से भर जाती हैं। तो आप लोग भी 7000 टाइम्स इस्तिग़फ़ार डेली पढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स लाज़मी करिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह क्या करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।